connect with you all because it's been so long we have not met because of this pandemic coronavirus. Obviously, I do understand that being safe at home is mandatory, but still, we can use technology and we can connect through technology. And live classes is the best, I guess, example. And to connect, I would like to see how many of you have replied. Oh, that's great. That's great. I can see the replies. Anita, good evening, ma'am. Rohan Bansal, good evening. Good evening. Vansh Singla, good evening. Good evening, all of you. I'm just taking 5 more minutes because I would like to give opportunity to everybody to connect as soon as possible. Then we are going to start today's class. Meanwhile, I am supposing that you all are being safe at home. You're not going outside, right? घर पे सब safe है. Maintain social distancing. If you buy anything from market, do not forget to sanitize it or keep it away for 24 hours. Good evening, Satish Mangla, Pavan Kumar, Anshika, Diksha, Nihit, Geeta, Prem Goyal, Raval online classes, Nidhi here. Okay. Ganesh Sharma, good evening. Piyush, good evening. It's great to see you all. Bhumi, Khushi, hello everybody. How have you been? I'm really, I'm really feeling good to see you all. All right. A lot of students have already connected. Wait for a few more minutes to give opportunity to everybody to connect. Then we are going to start today's class. Just give me five, not even five, 3, 4 more minutes. Meanwhile, let's keep on interacting. I would like to ask you a question. Have you seen the videos that I posted on YouTube on prepositions? Because in today's class, we are going to discuss some important questions on prepositions that usually come in the form of either editing, omission, or directly questions come in SSC or bank PO entrance examinations, basically in Olympiads or जो भी हमारे exams होते हैं competitive exams. So questions directly come in error deduction form, prepositions से आते हैं. So that's why we are going to discuss a few important questions that are going to be really very helpful for you all. So I would like to ask you a question. Reply in the comment box. Have you gone through all the videos that I posted on YouTube? A few videos are still left. दो तीन अच्छी videos हैं of fixed prepositions and also on the rules of prepositions that I'll be posting probably tomorrow or by 8 o'clock today only. जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताओ. मैं कमेंट बॉक्स में चेक कर रही हूँ किस किस बच्चे ने वो वीडियोस देखी हैं. तभी आपको मजा आएगा आज की क्लास में. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरैक्टिव. जैसे जैसे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती जाऊं मुझे रिप्लाई करते जाओ. दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट and this is the best time to enhance your English. As I always say that consider it as a blessing. Being optimistic, do not take it in a negative way कि ये क्या हो गया हम घर में बैठे हैं. Take it in a positive way. Try to take out positivity from everything. So take it in a positive way and consider it as a blessing, the best time of your life where you can connect with your family, where you can spend time with your family. Not only spending time, but also you can give a lot of time to enhance your basic knowledge. आप अपनी grammar, GK, बहुत basic education को बढ़ा सकते हो because school days में हमारा आधा time वहाँ से आने के बाद we feel tired and we feel a bit Lazarus, lethargic, and then we feel like sleeping. शाम ऐसी हो जाती है. Then you all, I guess, go to tuitions. So पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है. You don't get time for English. Don't get time for enhancing your GK. This is the best time अगर आपको अपनी personality groom करनी है, English groom करनी है, general knowledge groom करनी है. Being an optimistic, try to grasp the opportunity and make the best out of this time. Now, let me check how many of you have replied. Okay, yes. Satish Mangla is saying yes. He has gone through all the videos.
पवन कुमार इज ऑल्सो सेइंग यस, वंश यस, निहित ने भी देखी है, गणेश, Manish Vaishnav is also here. Hello Manish Vaishnav, how are you? Dikshant, Pavan, Khemraj Agarwal, nice to see you all. All right then. अब मुझे लगता है हमें अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करना चाहिए. कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर किए हैं जो कि मैं चाहूंगी आज आपके साथ डिस्कस करना. So let us start today's class now. A very good evening to everybody. Hi, hello, namaskar, sat sri akal, jai hind to everybody. I hope आप अपने nation की रक्षा कर रहे हो by keeping yourself inside and also try to educate your parents or family members or neighbors if they're not following this lockdown period. Now let us start today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss a few questions on prepositions. बट हम उन्हीं प्रपोजिशन से डिस्कस करेंगे जो हमने वीडियोस में अभी तक सीखी हैं. राइट, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ फ्यू वीडियोस ऑन प्रपोजिशंस, अ फ्यू आर स्टिल लेफ्ट. वो बन चुकी हैं, बस पोस्ट करनी है बाय टुमारो और बाय डे आफ्टर टुमारो. प्रोबेबली आज भी शायद मैं उन्हें पोस्ट कर दूं. उन्हें भी अच्छे से देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Those videos are going to cover a very important part of your preposition, that is fixed prepositions. कि कौन सा वर्ड अपने साथ कौन सी preposition लेता है, वो हम उन videos में देखने वाले हैं. अब हम start कर रहे हैं. कुछ questions मैंने prepare किए हैं, इधर उधर कई अच्छी जगहों से लिए हैं, वो हम discuss करेंगे. First question है, we are going to consider this class as an editing omission session. You are going to reply. आपको हर मिनट मुझे जवाब देना होगा. This session is going to be very interactive. Everybody look at the board and listen carefully. What am I saying? Children should always listen the advice of their elders. This is a sentence that I have written here. You have to tell me where can you see error in this line. Children should always listen the advice of their elders. छोटी मोटी गलतियां होंगी लेकिन मजा आएगा करने में. कोई बात नहीं, गलत भी होगा, दैट डजंट मैटर. मैं हमेशा से आपको मोटिवेट करती आई हूँ. गट्स उसी में है, पावरफुल वही है जो आंसर देना चाहता है. क्या हो गया, गलत है तो हम सब इंग्लिश सीखने ही तो यहाँ बैठे हैं. तो गलत हो गया तो अच्छी बात है, सीख जाएंगे. सो बिल्कुल मत सोचना कि गलत हो गया तो दैट डज नॉट मैटर एट ऑल. आप रिप्लाई कीजिए. इन बीइंग इंटरैक्टिव आप डिस्कशन में आओगे, वो ज्यादा जरूरी है. राइट, सो मुझे फटाफट विद इन अ मिनट रिप्लाई करके बताइए इसमें आपको क्या गलती दिख रही है. साथ साथ मैं जरा लेट मी चेक क्या गलती दिख रही है. ओके, बच्चों ने रिप्लाई किया है. अनीता, पवन, गणेश, रोहन, सबका रिप्लाई आ रहा है कि शुड आएगा. शुड में गलती है. ओके ओके, तारा रानी इज ऑल्सो सेइंग शुड आएगा. वेरी गुड. अनीता, पवन, गणेश, रोहन, सतीश, तारा, वेरी गुड. आपने एक गलती पकड़ी है. आपने कहा है यहाँ पे शुड में गलती है, बट शुड की जगह क्या आना चाहिए? अगर आपको शुड गलत लग रहा है तो अब मुझे वो लिख के बताओ जल्दी से. एंड व्हाट अबाउट एवरीबडी एल्स? आई कैन सी 25 participants. Why are you not interacting? चाहे गलत हो, I again motivate you all. You must write answers. You must interact. जब तक आप आंसर्स लिखते हैं, meanwhile get into a discussion. तो moment I see this word listen, मेरे एक ऐसी बात करते करते दिमाग में एक वर्ड आ गया that I really want to discuss with you all. क्या आपने इस वर्ड के बारे में सुना है? hear, HEAR, hear. इसका क्या मतलब होता है, जल्दी से बताओ. सुनना होता है क्या इसका मतलब? सुनना. वेरी गुड, सही कह रहे हो, सुनना होता है. फिर लिसन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी मैम सुनना होता है. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिसन एंड हियर? अगर इन दोनों का एक ही मतलब है, देन क्या प्रॉब्लम थी बनाने वाले को कि उन्होंने दो वर्ड्स बनाए? कुछ तो डिफरेंस होगा छोटा मोटा. किसी को पता हो तो जल्दी बताइए. बच्चे कह रहे हैं यस मैम डिफरेंस है. देन व्हाट्स द डिफरेंस? डू लेट मी नो विद इन अ मिनट. विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से मैसेज करके मुझे बताइए व्हाट्स द डिफरेंस.
Okay, let me check. से सुनने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ बिना कोशिश में ऐसे ही आपने कुछ सुन लिया, दैट इज़ हियर। दिस इज़ अ स्मॉल माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। जैसे आई लिसन वेरी केयरफुली टू व्हाटएवर टीचर टोल्ड मी इन द क्लास, ये हमारा लिसन का एग्जांपल है। और हियर का एग्जांपल क्या हुआ? आई वाज आई वाज गोइंग टू द मार्केट एंड सडनली आई हर्ड अ चाइल्ड क्राइंग। मैंने ऐसे ही सुना कि एक बच्चा रो रहा था। चलिए, हियर और लिसन क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे बैठे हैं स्कूल के, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्लास 11th, क्लास 10th एडिटिंग ऑमिशन में इसी से गलतियाँ आती हैं। एंड आगे भी कहीं जाओगे इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लेट इट बी एसएससी, बैंक पीओ, ओलंपियाड्स, एनीथिंग XYZ, कोई भी एग्जाम, आर्मी, नेवी, इंग्लिश सब में आती है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, एरर डिटेक्शन, जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है। सो वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट क्वेश्चन सो फार, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन। क्या गलती थी? टू ऐड होगा, टू द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। तो अभी हमने एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन की बात करी बेटा। क्या फिक्स्ड प्रेपोजिशन की बात करी?
कि लिसन अपने साथ टू लेता है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। लिसन कानों से सुनते हैं, लिसन अपने साथ टू लेता है, ठीक है। एक बात बताओ, आंखों से देखते हैं, लुक सुना होगा आपने, मतलब क्या होता है, देखना। सी सुना होगा आपने, देखना। ग्लेयर सुना होगा आपने, मतलब देखना। गेज सुना होगा आपने, मतलब देखना। स्टेयर सुना होगा, मतलब घूरना। और एक ग्लैंस सुना होगा आपने, ये GLANCE, ये मतलब होता है क्विक लुक। मतलब आप मुझसे पूछो कि शादी में मोदी जी आए थे, आपने देखा? मैंने कहा एक क्विक क्विक ग्लैंस, मतलब एक क्विक नजर पड़ी थी, बट मैं ढंग से नहीं देख पाई। तो ये क्विक लुक होती है। सो इन सब का मतलब समवेयर और अदर देखना से रिलेटेड है। ये अपने साथ क्या प्रेपोजिशन लेते हैं? सुनने वाला तो टू लेता है, देखने वाला क्या लेते हैं? देखने वाले ये सारे वर्ड्स अपने साथ प्रेपोजिशन लेते हैं एट। लिख लीजिए इसे कॉपी में। फिक्स प्रेपोजिशन की वीडियो भी अभी आपके पास आ जाएगी, बट ये भी आप ऐड कर लीजिए। लुक, सी, ग्लेयर, गेज, स्टेयर, घूरना, ये भी देखने से रिलेटेड है। ग्लैंस से क्विक नजर मारना, ये सब देखने से रिलेटेड है। इन सब वर्ड्स के साथ देर इज वन फिक्स्ड preposition that they take, that is at. I hope it is clear till now. आगे बढ़ते हैं आप। और बिल्कुल सिली वे में हंस रहे हैं, दैट इज स्निगर। लोटपोट होके हंसना दोस्तों के साथ, तालियां मार मार के, ये वाली जो स्माइल होती है, दैट इज स्निगर। ऐसा ही एक वर्ड और भी होता है, आपने स्नीकर्स चॉकलेट भी खाई होगी, स्नीकर। स्नीकर का मतलब भी होता है सिली वे में हंसना, कि बिल्कुल मस्ती में, अरे लेट लेट के हंस रही हूँ, हा हा हा। दिस इज स्नीकर एंड स्नीकर, दोनों का मतलब सेम है। स्मर्क का मतलब सेटिस्फैक्टरी स्माइल, कि मैं ऐसे हंस रही हूँ। चकल का मतलब भी यही है कि मैं थोड़ा अंदर ही अंदर हंस रही हूँ, हाँ मेरे से क्या पंगा लेगा, देख लेंगे। मॉक का मतलब किसी का मजाक उड़ाना, जैसे मैं किसी का मजाक उड़ा रही हूँ कि अरे उसको देखा था कितनी गंदी लग रही थी। दिस इज मॉकिंग, जब आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो नेगेटिव वे में। ग्रिन क्या होता है? वाइड स्माइल, कि पूरा मुंह खोल के हंसना। और लाफ तो सिंपल हंसना ही, हमें पता है। ये सारे वर्ड्स हंसने से रिलेटेड है। ये अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेते हैं? जो प्रेपोजिशन देखने वाला वर्ड्स लेते थे, एट, ये सब भी अपने साथ वही फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेते हैं, एट।
कभी भी आप यूज करोगे, कोई सेंटेंस बनाओगे, जैसे आई एम मॉकिंग एट माई सिस्टर, आई एम चकलिंग एट माई ब्रदर, इन सब वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन कौन सा लगेगा बेटा? एट. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. ये मैं एक सेंटेंस अभी तक हमने सीखा है, उस एक सेंटेंस में से धीरे धीरे निकलते निकलते मुझे याद आते गए वर्ड्स, तो मैं आपको सिखाती गई. ये फिक्स प्रेपोजिशंस की वीडियोस दोबारा कह रही हूँ आपको दूंगी, लेकिन ये बहुत काम आएंगे आपके एडिटिंग ऑमिशन के वक्त. इनको हमेशा अपने पास रखना. चलो लेट्स मूव टू द सेकंड सेंटेंस. आई होप आप सबने ये कॉपी कर लिए हैं इन योर नोटबुक्स. लेट मी रीड द कमेंट्स फॉर अ मिनट. स्पीकर के साथ यूज होगा. ऑल राइट, हाँ, बच्चों के रिप्लाई आए, कर लिए. लेट्स मूव टू द सेकंड सेंटेंस नाउ. कॉपीज में उतार लीजिए, चौक ले लेने दीजिए. Read the sentence. Sudha fell in the well and nobody tried to save her. Take 1 minute, read it, try to analyze, and tell me where can you find a mistake in this line. Consider it as your test. मुझे बताओ, जल्दी से मैं आपके कमेंट्स में चेक कर रही हूँ, क्या आपको गलती दिख रही है इसमें? अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप मुझे गलती बता पाओगे. कमल यादव, वेरी गुड कमल. और कोई? चलिए मेरे बताने से पहले वेट कर लेते हैं. लेट मी सी एवरीबडीज कमेंट्स. पवन कुमार वेरी गुड, दीक्षा वेरी गुड, मनीष शर्मा वेरी गुड, सुनील सैनी वेरी गुड. अरे यार तुम तो बड़े इंटेलिजेंट निकले रे, सबने सही आंसर दिया है. सोनल यदुवंशी इंटू, निहित इंटू, खेमराज इंटू, वेरी गुड. ओनिशा कालरा फेल इंटू, वेरी गुड. पीयूष जैन इंटू, वेरी गुड. इसका मतलब सबने वीडियोस देखी हैं. आई एम फीलिंग रियली सेटिस्फाइड. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इट इज such an apprehensive feeling that you all have studied. Whatever I'm giving, all my material is in safe hands, I guess. You all are taking best use of it. Thank you so much. Now आंसर आप सब बता ही चुके हैं. स्टिल मैं एक बार और बता देती हूँ, जस्ट अ फॉर्मेलिटी. अदरवाइज मैं देख चुकी हूँ आप सब बहुत इंटेलिजेंट है. चलिए, सुधा फेल इन द वेल, जैसे सब बच्चों ने बताया, हमने डिस्कस भी किया था, जो मैंने आपको वीडियो दी थी. जब हम किसी चीज में मोशन में जाते हैं, ठीक है, जब हम किसी चीज के अंदर जाते हैं और इन अंदर की सेंस में मोशन होता है, इन दैट सिचुएशन वी यूज प्रेपोजिशन इनटू. जैसे हमने एग्जांपल्स भी किए थे, फ्रॉग फेल इनटू द वेल. कोई भी एग्जांपल ले लो, फिश जम्प्ड इनटू द रिवर. तो कहीं किसी भी चीज में जब हम अंदर जाएंगे, बट हाँ अंदर जाने में कोई मोशन की सेंस होगी, तब हम इनटू का यूज करते हैं. तो यहां हमको गलती दिख गई, इन नहीं आएगा, क्या आएगा? इनटू आएगा. बहुत बढ़िया. अगेन अ शाउट आउट फॉर ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हु आर रिप्लाइंग. वेरी गुड. नेक्स्ट. सुनील सैनी, हम भी आपको बहुत मिस करते हैं सुनील. ओल्ड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज अ ट्रेजर. जितने भी पुराने बच्चे अभी यहाँ हैं, it is always teachers pleasure to be in contact with you all. एंड ऐसा मत सोचना कि हम लोग आपको याद नहीं करते. वी मिस यू मोर. इन फैक्ट आप बच्चे. दीक्षिता, हेलो दीक्षिता. सुनील, अच्छा दिस इज निखिल सैनी. सुनील आप निखिल सैनी है. हेलो निखिल सैनी.
नेक्स्ट, थर्ड, अब कुछ एक और सेंटेंस मैंने लिखने की कोशिश करी है. I would again like to give you 1 minute. Check it out and tell me where can you find the error in this. कहाँ आपको गलती दिख रही है? हेलो कौशिकी, इट्स बीन सो लॉन्ग. कौशिकी कैसे हो आप? अरे वंश, हेलो, हाउ आर यू बेटा, कैसे हो? हरकेश यादव, हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? वंश ने जवाब भी दे दिया. शाबाश यार वंश, यू आर वेरी इंटेलिजेंट. इन द रिवर आएगा. ठीक है वंश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. वंश बिल्कुल नाराज नहीं होना बेटा, जरूर आपका रिप्लाई दूंगी. वो बोर्ड पे लिख रही होती हूँ कई बार तो पढ़ नहीं पाती हूँ कमेंट्स को, कोशिश करती हूँ पढ़ पाऊँ मैक्सिमम टाइम्स. डोंट वरी. बट हाँ, साथ साथ पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कमेंट्स, नाराज नहीं होगा कोई. अच्छा, दिस इज मुस्कान वंश सिंगला. हेलो मुस्कान. सोनल ने भी जवाब दिया इन द रिवर. अच्छा, अब मेरे को बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं इन द रिवर, एंड आई कंसीडर योर रिप्लाई एज वी हैव जस्ट डिक्लेयर्ड द फैक्ट दैट यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट. मैं ये समझ चुकी हूँ, आप ये मुझे प्रूव कर चुके हो, तो मैं आपका आंसर ठीक मांग रही हूँ. लेकिन मेरा एक आपसे जनरल क्वेश्चन है. लेट्स डिस्कस. ही थ्रू द बकेट डैश द रिवर. अभी हमने डिस्कस किया इन द लास्ट सेंटेंस कि अगर हम किसी चीज को मोशन में डालेंगे सॉरी, कोई चीज किसी में जा रही है और मे के सेंटेंस में एक्सक्यूज मी, और मे के सेंस में हमारे पास मोशन का सेंस आ रही हो, तो जहां मोशन की सेंस आ रही होती है, अभी तो हमने डिस्कस किया कि इनटू आता है, फिर आप इन क्यों कह रहे हो? It's just a question. I'm considering the fact that you are telling me that in is going to be the right answer. Okay, all right, you are intelligent, in is the right answer. But it's just a question in my mind that in the last question we have discussed that whenever we try to get a sense of may in Hindi ki koi cheez kisi mein ja rahi hai, and then that thing is in motion as well, then we use preposition into. We have just discussed, right? अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, फ्रॉग फेल इनटू द रिवर, फिश जम्प्ड इनटू द वेल, ये हमने अभी तो डिस्कस किए. सो फिर यहाँ पे इन क्यों? जल्दी बताओ, जल्दी, विद इन अ मिनट रिप्लाई करके. नो एरर गणेश कह रहा है. सुनील सैनी, इन सेंटेंस में ही गलती है. अच्छा, कल्पना कह रही है इन द रिवर आएगा. सुनील सैनी अगेन इज सेइंग दिस नो एरर. रोहन इज आल्सो सेइंग नो एरर. हेलो अंशु, कैसे हो आप? ठीक है, मेरे को जवाब दो मेरे क्वेश्चन का. मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँ, आपके प्रॉब्लम्स का जवाब दे रही हूँ. मेरे दिमाग में प्रॉब्लम आई है कि आपने इन बोला अगर, तो इन कैसे होगा? ये इनटू क्यों नहीं होगा यहाँ? इनटू द रिवर एंड नो एरर हरकेश कह रहा है. हेलो खुशी. चलिए अब एक बात सुनते हैं. देखिए, मैं अभी बार-बार आपसे बात कर रही हूँ कि हमारे जनरली पेपर में ईज़ी-ईज़ी प्रीपोज़िशन से क्वेश्चन नहीं आते. हमारे जनरली पेपर में क्वेश्चन्स आते हैं कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कब बनता है? जब हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, एज़ आई जस्ट डिस्कस्ड, दैट दे ऑलवेज़ टेक वन फिक्स्ड प्रीपोज़िशन विद देम. उन्होंने अपना दोस्त बना रखा होता है, वो उससे बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ते. तो ऐसा ही कभी-कभी हमारे पेपर में, अभी जो हमने लास्ट सेंटेंस किया वो ईज़ी था. इन, इनटू सबने बता दिया. लेकिन पेपर में वैसा सेंटेंस कभी नहीं आएगा, स्पेशली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां बच्चा देखकर ही कंफ्यूज हो जाए, जैसे अभी हम तुम कंफ्यूज हुए. हमने सोचा कि यहाँ तो इनटू आना चाहिए एज पर द रूल, बिकॉज वी हैव जस्ट डिस्कस द रूल दैट कभी कोई चीज किसी में जाती है and that thing is in motion, then we use into preposition for that. So grammatically according to the rule it is absolutely right. But फिक्स preposition जब हम याद करेंगे, तो हम ये याद करेंगे कि थ्रो अपने साथ हमेशा फिक्स preposition इन लेता है. तो यहाँ पे आपको थ्रू दिखाई दिया, इट इज द सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये थ्रो की, थ्रू. एंड थ्रो अपने साथ कौन सा preposition लेता है? इन. इसलिए कुछ बच्चों ने जो स्टार्टिंग में रिप्लाई दिया था
कि यहाँ पे into नहीं in आएगा. Those were absolutely right. Huge round of applause for them. Very good. Well done. चाहे तुक्का मारा था या आपको रूल पता था, बट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अगर वो तुक्का था तो इट मीन्स यू आर वेरी गुड एट गेसिंग. गुड लक. चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? इनटू नहीं आएगा, यहाँ पे इन आएगा. मैंने तभी सेकंड एग्जाम्पल के साथ ही रखा इस एग्जाम्पल को, ताकि आपको थोड़ा सा रूल्स की कॉम्प्लेक्सिटीज जानने में आसानी हो. वैसे कोई चीज मोशन में है, इनटू आएगा, लेकिन अगर थ्रो आ गया, थ्रो जो है अपने साथ हमेशा फिक्स preposition लेता है, एंड दैट इज इन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ये अगर किसी को नोट डाउन करना है तो साथ साथ करते जाइए बेटा. कैन आई इरेज इट? ओके. Let's move to the next example. I prefer tea than coffee. बताओ क्या आएगा? क्या गलती है इसमें? ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं नो एरर हो. सो प्लीज ध्यान से इसे देखिए, एंड वॉट एवर एरर यू फाइंड प्लीज लेट मी नो. हेलो वैष्णव बॉय, हाउ आर यू? चौहान राजेंद्र सिंह कह रहे हैं नो एरर. मुझे रिप्लाई नहीं आ रहे बच्चों के बेटा. क्या हो गया? हाँ आ गया रिप्लाई. गुड. दीक्षिता रिप्लाई दो बेटा. इसमें क्या गलती दिख रही है आपको? आई प्रेफर टी देन कॉफी, इज इट राइट? जल्दी जल्दी थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाइए, इतने सारे बच्चे हो, फटाफट बताओ. हेलो हिनाक्षी, कैसे हो बेटा? इंस्टेड ऑफ दैन वी यूज बिसाइड्स. ध्रुव कह रहा है ओके. ध्रुव कह रहा है बिसाइड्स आएगा. टी के बाद रादर आएगा. नारायण कह रहा है ओके. रादर देन आएगा. प्रेफर टू. अनिशा कालड़ा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. अनिशा कालड़ा ने दिखा दिया मेरी स्टूडेंट है. वेरी गुड बेटा. बाकी सब भी जल्दी ही इसी सिचुएशन में आ जाएंगे. ये दीक्षा कुकरेजा टू, वेरी गुड, वेरी गुड. शाबाश शाबाश. शाउट आउट अनिशा कालरा, वेरी गुड. चलिए, I prefer tea than coffee. Now again moving forward, as we have already discussed a lot of times about fixed prepositions, जिसकी मैं आपको अच्छी खासी बहुत सारी क्लासेस भी देने वाली हूँ. इसमें मैंने कोशिश करी है फिक्स preposition के कम एग्जाम्पल्स रखने के, लेकिन हाँ साथ साथ थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स रखें ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. प्रेफर एक वर्ड है जो हमेशा अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है टू. इससे रिलेटेड मैं अभी वीडियो भी आपको पोस्ट करूंगी, मैंने बना रखी है, बस पोस्ट करनी रह रही है. आज रात तक पोस्ट हो जाएगी, जिसमें बहुत सारे फिक्स प्रेपोजिशंस मिलेंगे. मैंने उसमें प्रेफर, प्रेफरेंस, ये सारे वर्ड्स भी सिखाए हैं, आपको मिलेंगे. प्रेफर हमेशा अपने साथ कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन लेता है? टू. यहाँ पे देखो क्या प्रेपोजिशन आ रहा है? दैन. अब बताओ कोई गलती दिख रही है आपको? पहला ये समझो कि मैंने आपको एक रूल सिखाया, दैट प्रेफर ऑलवेज टेक्स प्रेपोजिशन टू विद इट. अब आप देखो, जब आपको पता चल चुका है प्रेफर के साथ टू लगता है, अब देखो इस सेंटेंस में क्या गलती है. बिल्कुल सही, आपको यहाँ दैन दिख रहा है. आपको अब अभी अभी आपको मैंने बताया टू आता है, तो शाबाश, आपने मुझे बताया कि यहाँ पे टू आएगा. आई प्रेफर टी टू कॉफी. वेरी गुड, वेरी गुड. इसको याद रखना हमेशा के लिए. प्रेफर का बेस्ट फ्रेंड है टू. दीक्षा, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया. दीक्षा बिल्कुल मेरी भाषा में बात कर रही है कि प्रेफर का बेस्ट फ्रेंड कौन है? टू है. बेस्ट फ्रेंड हम किसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं? फिक्स प्रेपोजिशंस के लिए, जो आपस में हमेशा साथ चलते हैं. नेक्स्ट.
चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसमें क्या गलती दिखाई दे रही है आपको। ये मैं अभी बहुत इजी लेवल लेके चल रही हूँ। धीरे-धीरे नेक्स्ट वीडियोज़ में लेवल एक-एक करके बढ़ाती जाऊँगी। अभी मैंने द ईज़ीएस्ट एग्ज़ाम्पल्स उठाने की कोशिश करी है बिकॉज़ मैंने सोचा वीडियो को लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं जो रिवीजन वीडियोज़ हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेवल और ज़्यादा मिलेगा। उससे नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा लेवल एसएससी बैंक पीओ के क्वेश्चंस लेके आऊँगी सारे। अभी इसमें कुछ-कुछ मैंने ईज़ी भी ऐड करे हैं। अब ये एक टाइप का हमने नेक्स्ट क्या हमारी सीक्वेंस चल रही है 4th। बताओ इसमें आपको क्या गलती दिखाई दे रही है? एम्फिबियंस कैन लिव इन वाटर एज़ वेल एज़ लैंड। एम्फिबियंस जो होते हैं, वो पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं। कैन यू फाइंड एनी एरर इन दिस सेंटेंस? जल्दी विदिन अ मिनट स्पीड बढ़ाओ, जल्दी-जल्दी बताओ, रिप्लाई कीजिए। राजेंद्र चौहान वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सीमा चौधरी कोई बात नहीं, आप अब 4th एग्ज़ाम्पल पे ही हैं हम, कोई बात नहीं, आप अभी से कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑन लैंड आएगा, गणेश, पवन, अनीता, बहुत ही बढ़िया। द प्राइड ये कौन है? मोहक, ओके। निहित, वंश, हेलो मोहक, कैसे हो बेटा? अरे यार, तुम तो सारे इतने इंटेलिजेंट इकट्ठे हो गए। खेमराज, हरकेश, दीक्षा, सूरज, रोहन, हिनाक्षी, निखिल सैनी, सभी इंटेलिजेंट हो यार। तुम्हें तो मेरे को लगता है मुझे पढ़ा दोगे तुम सब मिलके। शाबाश, वेरी गुड। सबने एक ही जवाब दिया है। कभी-कभी देखो ये मैंने क्यों लिया एग्जाम्पल। कभी-कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पेपर में। क्या होता है अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि कोई अ, कोई वर्ड हमने गलत लिखा हुआ था, किसी के साथ कोई गलत प्रेपोज़िशन लगाया हुआ है या कोई वर्ड जो हमेशा अपने साथ एक फिक्स प्रेपोज़िशन लेता है, हमने कोई और प्रेपोज़िशन लगाया हुआ है। लेकिन अब मैं आपको ये सिखाने जा रही हूँ, कुछ-कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, कभी-कभी ऐसे भी एरर्स आते हैं जहाँ पर प्रेपोज़िशन मिसिंग होता है। मतलब जैसे यहाँ पे एक प्रेपोज़िशन आना था, एज़ वेल एज़ के बाद जो यहाँ पे मिसिंग था। तो कभी-कभी ऐसे भी एरर आते हैं एग्ज़ाम में। हमेशा ये ब एरर नहीं आएगा कि आपको सॉरी कोई वर्ड गलत लिखा होगा, कोई प्रेपोज़िशन गलत लिखा होगा। जैसे यहाँ पे हमने ये देखा कि एक बात बता दी, पानी से पहले प्रेपोज़िशन लगा है, तो लैंड से पहले प्रेपोज़िशन क्यों नहीं लगेगा? अगर दोनों वर्ड्स के साथ सेम प्रेपोज़िशन लगता हो, तो हम दोनों के साथ एक ही सेम लगा देते हैं। लेकिन अगर अलग-अलग है तो हमको अलग-अलग प्रेपोज़िशन लगा के उन दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? सो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे? ऑन लैंड। बिल्कुल ठीक। ये बात हमें याद रखनी होगी। बहुत सारी ऐसी गलतियाँ एग्ज़ाम में आती हैं, जहाँ पर एक ही प्रेपोज़िशन लगाया होता है 2 वर्ड्स के लिए और वो दोनों अलग-अलग चीज़ों को डिनोट कर रही होती हैं। इस टाइम पर हमको बहुत कॉशियस होना पड़ेगा कि गलती कहाँ है, कि एक प्रेपोज़िशन मिसिंग है। आई आई होप आप सबने इसको कॉपी में लिख लिया है। शुड आई इरेज़ इट? ले लीजिए 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट। डीसी गेमर, आपका नाम क्या है? हेलो बेटा। नेहा मंगला ने रिप्लाई कर दिया है कि यहाँ फॉर आएगा। ओके, शाबाश। नेहा मंगला बहुत इंटेलिजेंट हो। अब नाम नेहा है तो इंटेलिजेंस तो आनी थी। गुड गुड। आई एम दिव्यांश, योर ओल्ड स्टूडेंट। हेलो दिव्यांश, हाउ आर यू? हिनाक्षी, ठीक है। मेघा त्यागी, हेलो मेघा त्यागी, कैसे हो? फॉर आएगा, मनीष कह रहा है। बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई करा कि यहाँ पर उनको गलती लग रही है। यहीं पर कह रहे हो ना फॉर आएगा, सिंस
लेट मी रीड द रिप्लाईज। हाँ ठीक है, यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है बेटा? कोई मुझे बता सकता है जल्दी से, 1 मिनट में रिप्लाई करके? कोई एक लाइन में मुझे बता दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। लेट मी चेक किसी का रिप्लाई आया है तो। किसी का रिप्लाई नहीं आया है, बट हाँ बच्चों ने रिप्लाई ये जरूर किया है कि यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। रीजन कोई मुझे बता, हाँ रीजन आ गया। किसने भेजा? दीक्षा ने भेजा, पीरियड ऑफ टाइम। शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इनडेफिनेट और डेफिनेट टाइम, ये किसका रिप्लाई था? लेट मी चेक। गणेश शर्मा, वेरी गुड यार, शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, वेरी गुड। नाउ लिसन, सी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। सो जब भी हमारा पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही होती है, देन वी यूज दिस preposition फॉर, एंड इफ वी टॉक अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम, देन वी यूज दिस preposition सिंस। नाउ सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में देखो कि मैं ये कहती हूँ आपको, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कि मैं बीमार हूं सिंस मंडे। ठीक है, मैं मंडे से बीमार हूं। अब इधर क्या है कि मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है मंडे। मंडे से बीमार होने में शुरू हुई हूं, लेकिन ये कब खत्म हुआ दूसरा पॉइंट नहीं पता है आपको। एक पॉइंट पता है बस, दूसरा एंड नहीं पता। तो मैं यहाँ एरो लगा के बताने की कोशिश कर रही हूँ कि स्टार्टिंग एरो पता है, दूसरा वाला अभी खाली है। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास सिंस, एक पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैं फॉर टाइम में बात करती हूँ। फॉर टाइम में क्या होता है, एक पूरा फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे मैं कह रही हूँ 2 घंटे, 2 घंटे पहले मैंने ये काम शुरू किया था, तो पूरा पीरियड ऑफ टाइम मुझे फिक्स्ड पता है कि 2 घंटे पहले 3 बज रहे थे और अभी 5 बजे तक मैं पड़ी हूँ, तो 3 आवर्स से लास्ट 5 बजे तक यहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग और एंड दोनों क्लियर है, एक पूरा पीरियड ऑफ टाइम मेरा क्लियर है। यहाँ हम फॉर यूज करते हैं, राइट, जहां हमको एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम पता होता है, जहां हमें सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम पता होता है। मंडे से शुरू हुआ, सैटरडे से शुरू हुआ, मॉर्निंग से शुरू हुआ, या कोई मंथ ले लीजिए, जुलाई से शुरू हुआ, जून से शुरू हुआ। एक दूसरा वाला एरो मिसिंग है मेरा, राइट, एग्जैक्ट पीरियड नहीं पता। देयर विल यूज सिंस। जहां एग्जैक्ट पीरियड पता है, देयर विल यूज फॉर। इट इज रियली वेरी इजी। अगर आपको अभी भी किसी को प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सिंस और फॉर पे एक अच्छी सी सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। बट मुझे लगता है जिस हिसाब से सब बच्चों के रिप्लाई आए थे, काफी बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है। सो यहाँ पे क्या आएगा? फॉर, क्योंकि एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम है, 2 घंटे की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंस की जगह फॉर। ठीक है, अभी भी इजी है, धीरे धीरे हाई लेवल पे चलते हैं। शुड आई रेज इट? पढ़ लिया सबने? लिख लिया सबने? कॉपी में लिख लीजिए बेटा। चलिए, नेक्स्ट। चलिए फटाफट से गलती बताइए। ट्राई टू चेक आउट द सेंटेंस and do let me know where can you find the error. There appears to be very little understanding among the two brothers. अरे बहुत इंटेलिजेंट अनीता, वेरी गुड। बिटवीन ऋतु, नेहा, मंगला, दीक्षा, शाबाश बेटा, वेरी गुड। ऋतु शर्मा, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। बच्चों के रिप्लाई आना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। See, we have discussed in the videos that if we talk about distributing something in two parts, two things, two people, then we use between. And if we talk about distributing something
इन मोर देन 2 पीपल देन वी यूज़ अमंग, हमने डिस्कस किया था। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या हम 2 से ज़्यादा लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी बिटवीन यूज़ कर सकते हैं? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। इफ यू से येस देन राइट व्हाई एंड फॉर नो। जो कह रहे हैं हाँ 2 से ज़्यादा के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, मतलब 3 से 4 लोगों में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो उसके लिए भी बिटवीन यूज़ हो सकता है। राइट व्हाई एंड फॉर नो। जल्दी मैं देख रही हूँ, व्हाई फॉर येस एंड फॉर नो, क्विक। राजेंद्र कह रहा है नो, दीक्षा नो, एक बच्चे का रिप्लाई आया यस, बाकी सबने अभी तक, निहित भी रिप्लाई करा नो। निहित मार पड़ेगी बेटा, इसका मतलब वीडियोस नहीं देखी। मैंने वीडियो में समझाया था बहुत अच्छी तरीके से ये वाला केस कि कब हम 2 से ज्यादा में भी बिटवीन को यूज कर सकते हैं। नव्यम त्यागी नो, बेटा नहीं। नव्यम वीडियोस देखो दोबारा। पवन कुमार नो। ये जो सब बच्चे नो बोल रहे हैं ना, मुझे समझ आ चुका है कि आपने ढंग से वीडियोस नहीं देखी हैं। देखिए मैंने वीडियोस, प्लीज गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस, दे आर गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल फॉर यू एंड आई मीन इट। आपको बहुत काम आएंगे इन डे टू डे लाइफ, इन ग्रामर, इन एनहांसिंग योर कम्युनिकेशन। इंग्लिश बेसिकली आपकी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करने में दे आर गोइंग टू प्रूव एज अ ब्लेसिंग। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। व्हेन वी डिवाइड समथिंग इन टू people, or when we do two divisions of a particular thing, then yes of course we use between। और अगर 2 से ज़्यादा में डिवाइड करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अमंग यूज़ होता है। लेकिन बिटवीन का भी एक केस होता है, मैंने आपको वीडियोज़ में समझाया था। आज जिन बच्चों ने भी अभी नो लिखा है ना, मेरा लेक्चर खत्म होते ही वो सब बच्चे पहले बिटवीन और अमंग की वीडियो देखेंगे। अगर हम किसी चीज़ को 3 से 4 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनमें अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, देन वी कैन यूज बिटवीन फॉर मोर देन 2 डिविजन एज वेल। जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरे नेबर्स, हम 4 नेबर्स में बहुत अच्छे म्यूचुअल रिलेशनशिप हैं, सो देर इज अ गुड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वी 5 नेबर्स, मैं यूज कर सकती हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में और बच्चे गलत कर आते हैं, मैंने आपको वीडियो में भी सिखाया था। वो सोचते हैं कि अरे 5 की बात आ गई तो यहाँ पे बिटवीन आ ही नहीं सकता, यहाँ तो अमंग आएगा। बट गलत, अमंग नहीं आएगा। अगर हम कहीं म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कहीं बहुत अच्छा याराना दोस्ताना की बात हो, तब हम बिटवीन यूज कर सकते हैं मोर देन 2 के लिए। वो सब बच्चे जिन्होंने एन लिखा था दोबारा जाएंगे और वीडियो खत्म होते ही पुरानी वीडियोस देखेंगे बिटवीन और अमंग की। जैसे एक टूर्नामेंट है कोई, तो मैं कह रही हूँ अफ्रीका, इंडिया और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में टूर्नामेंट है। सो देर इज अ टूर्नामेंट बिटवीन अफ्रीका, अमेरिका और इंडिया भी सही होगी लाइन। ये एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ एसएससी में और बच्चों ने 80% बच्चे यही गलती करके आए थे। देखो क्वेश्चन क्या था, देयर इज अ टूर्नामेंट ऑन मंडे बिटवीन अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कोई क्वेश्चन था। 99.9% बच्चे क्या गलती करके आए थे, बिटवीन की जगह अमंग लिखाए थे और खुश होकर बता रहे थे मैम 2 से ज्यादा की बात हो रही है, यहाँ तो अमंग आएगा। बट उसमें नो एरर था, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। जब कोई 3 लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल रिलेशनशिप से कोई क्रिकेट या कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वहां हम बिटवीन यूज कर सकते हैं। बिटवीन की एक्सेप्शन है। तो पहली बात तो हमको, मैंने पुराना रिकैप्चुलेट कराया आपको। नाउ लेट्स कम टू दिस वेरी सिंपल एग्जांपल। मैंने अभी मुश्किल वाले एग्जांपल्स लिए नहीं है, वो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में लूंगी, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी कि आज कितने बच्चे कनेक्ट होने वाले हैं, कितने टर्न अप होंगे, इसलिए मैंने इजी से शुरू किया है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, नेक्स्ट क्लास का लेवल और ज्यादा हाई होगा, तो इसलिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठे। देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल डिफरेंस अमंग द 2 ब्रदर्स। 2 भाइयों की बात हो रही है, 2 में कोई चीज, 2 लोगों के बारे में कोई बात हो तो अमंग नहीं आएगा, क्या आएगा, बिटवीन आएगा। लेकिन हाँ, हमने अभी एक एक्सेप्शन रिवाइज किया, कभी कभी 2 से ज्यादा के लिए भी हम बिटवीन यूज कर सकते हैं, ओनली इन अ केस वेयर देयर इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। फटाफट जो मैंने बिटवीन का एक्सेप्शन रूल बताया है वो कॉपी में लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में, और एग्जाम्पल को भी कॉपी में लिख लीजिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दैट। लिख लिया? ऑल राइट।
ललित कुमार, मनीष वैष्णव रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। और ओनिशा कैसी है बेटा? हाउ हैव यू बीन एंड व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप। बहुत दिन हो गए, इट्स बीन सो लॉन्ग वी हैव नॉट टॉक्ड। चलिए, there is an enmity between he and I। नहीं भी लगाओगे तो चलो चल जाएगा। देयर इज एनिमिटी बिटवीन ही एंड आई। बताओ क्या गलती है? आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जल्दी से मुझे रिप्लाई दीजिए। आई एम कमिंग टू चेक। बिटवीन इज यूज्ड व्हेन नेमिंग डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स। बहुत बढ़िया मोहित भारद्वाज, इसका मतलब आपने वीडियो देखी है, शाबाश। नेहा मंगला, आई नेहा मंगला, वेरी 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 गुड, बहुत इंटेलिजेंट बेटा। पीयूष जैन, एनिमिटी मतलब, पीयूष एनिमिटी मतलब शत्रुता। इट्स द ऑपोजिट ऑफ फ्रेंडशिप। जो आपका दोस्त नहीं है, शत्रु है। आई एन ही, रोहन बंसल, वेरी गुड। गणेश शर्मा, आई एन ही, शाबाश। अनीता शर्मा, नव्यम त्यागी, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इनमें गलती आई एन ही में, ठीक है, लेकिन आएगा क्या ये बताओ। देखिए, मैं अभी एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं आपको कुछ प्रेपोजिशंस के रूल बताने वाली हूँ जो हमें हमेशा ध्यान रखने पड़ते हैं। कॉमन रूल्स हैं जो हमारे, फिक्स प्रेपोजिशन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। प्रेपोजिशंस जो अभी हमने सीखे, हर प्रेपोजिशन का जो रूल होता है, इन का अलग, इनटू का अलग, उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हर वर्ड अपने साथ क्या प्रेपोजिशन लेता है उसके बारे में बात नहीं करती हूँ। ओवरऑल सारे प्रेपोजिशंस, एक प्रेपोजिशन, पूरे चैप्टर, हर प्रेपोजिशन का कुछ फिक्स रूल्स हैं, 4-5, जो सबके लिए वैलिड है। वो उसकी एक वीडियो बनाऊंगी जो आप ध्यान रखना। उसमें एक रूल ये भी है, मैंने ये इसलिए आज के सेंटेंस में भी डाला कि थोड़ा सा आपका बेस बना दूं। देखिए, जब भी हम कोई भी प्रेपोजिशन लेते हैं, इन टू, इन, ऑफ, ऑन, लेट इट बी एनी प्रेपोजिशन ऑन दिस अर्थ, उस वो प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। यहां लिख रही हूं, ऑब्जेक्टिव केस। आपको ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस के बारे में पता है? थोड़ा सा मुझे आइडिया दो, जल्दी से रिप्लाई करो। रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का, जल्दी बताओ। नहीं पता नहीं पता नहीं पता। नव्यम त्यागी कह रहा है पता है। नव्यम बताओ बेटा। पता है। नेहा मंगला तो, नेहा तो तुम तो बॉर्न इंटेलिजेंट हो बेटा। नेहा नाम में इंटेलिजेंस है।
something in more than two people, then where is the difference? In among और amongst में difference कहाँ है? Difference कहाँ है? जो बच्चों ने वीडियो देखी है उनका रिवाइज हो जाएगा. Let's recapitulate it once again, and जिन्होंने नहीं देखी है वो एक बार ध्यान से सुन लीजिए. जब हम among किसी वॉवल साउंड A, E, I, O, U, वॉवल साउंड सबको पता है क्या होती हैं? 5 वॉवल A, E, I, O, U, ये हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम इनकी साउंड कंसीडर करते हैं. A की साउंड क्या है? आ. E की साउंड क्या है? A. I की साउंड है E. O की साउंड is O. And U की साउंड is A. You will have to be very specific about it. See, the sound of U is not U. ये U वाली साउंड नहीं है, देखिए ध्यान से. U साउंड नहीं है, जबकि क्या साउंड है? अ. इसीलिए हम यूनिवर्सिटी के आगे एन नहीं लगाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, जहां पर भी ए ई आई ओ यू दिख गया वहां एन लगा दो. तो ऐसे वो एप्पल के आगे क्या करेंगे? एन लगा देंगे. इंक के आगे क्या करेंगे? एन लगा देंगे. सिमिलरली वो यूनिवर्सिटी के आगे क्या करेंगे? एन लगा देंगे. मुझे पता है कुछ बच्चों को ये आता है, बट एक दो ऐसे भी हैं जिनको नहीं आता होगा, इसलिए बीइंग अ टीचर ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं जीरो लेवल से सिखाना शुरू करूं, हाई लेवल पे पहुंचूं. इसलिए जो एक आध बच्चों को आता हो, 1 मिनट बस मुझे देना, ताकि मैं और बच्चों को समझा पाऊं. आउट ऑफ ह्यूमैनिटी उन बच्चों के लिए आप 1 मिनट अपना थोड़ा सा स्पेयर करना. सो यूनिवर्सिटी, यू की साउंड आ रही है, बच्चे यू देखते ही यहाँ पे एन लगा देते हैं, बट गलत है. हमको नया कॉन्सेप्ट सीखना है. क्या? जहाँ पे ए ई आई ओ यू दिख जाए, देखना नहीं है. ठीक है? अब आजकल देखने से काम नहीं चलता, आजकल बात सुननी पड़ती है, समझना पड़ता है इंसानों को. देखने में बहुत दिखावा है, मेकअप लगा के आ जाते हैं, पागल बनाते हैं. बातें सुनो, बातें समझो, तभी सिलेक्ट करना भाई. तो इधर मेरे को देखना नहीं है कि यहाँ पे मुझे देखने से यू दिखा, मैंने एन लगा दिया. नहीं, पहले बात करके साउंड सुनेंगे भाई. तो जब मैंने इसकी बोल के देखा यूनिवर्सिटी को, तो आवाज क्या आई? यू. ठीक है, यू की साउंड आई, बट क्या मैंने यहाँ 5 साउंड में यू लिखा? नहीं लिखा ना. तो यहाँ पे तो यू की साउंड आ रही है, लेकिन मैंने तो कहा ये 5 साउंड आएगी तभी एन लगेगा. यू की साउंड तो अ है, इसलिए यहाँ पे एन नहीं लग सकता. इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ए और एन का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या अभी भी आप कोई यहाँ बच्चा ऐसा है जिसको नहीं आता है ये कॉन्सेप्ट? थोड़ा इलेबोरेटेड वे में वो समझना चाहता हूँ, तो जल्दी मुझे 1 मिनट में रिप्लाई करके बताओ. ए और एन का कॉन्सेप्ट समझना है किसी को, या आगे बढ़े? जल्दी, यस और नो. क्विक रिप्लाई कीजिए, यस और नो. शुड वी मूव फॉरवर्ड? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट. काफी बच्चों को आता है, दैट्स गुड. ठीक है, तो अगर हमको बच्चों को आता है, अगर हमको ए ई आई ओ यू दिखाई दे, वहां हम एन नहीं लगाते. जहां हमको ए आई ओ यू की साउंड दिखाई दे, वहां हम एन लगाते हैं. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आज के टाइम पे लड़की को देख कर सिलेक्ट नहीं कर सकते, बात करनी पड़ेगी भाई. ठीक है, तो ऐसे हम देख कर सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे बात करनी पड़ेगी, मतलब बोलना पड़ेगा. जब हम बोलेंगे तो बोल के जो साउंड निकलेगी वो देखेंगे. अगर इन 5 साउंड में से कोई होगी, मतलब वॉवल साउंड है, मतलब एन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. अब इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ आती हूँ. वॉवल साउंड का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? अगर कोई भी अमंग इन दोनों प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वॉवल साउंड का वर्ड आ जाता है, तब हम अमंगस्ट यूज करते हैं. अगर कॉन्सोनेंट साउंड का वर्ड आता है तो अमंग. जैसे मैं कह रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज डैश देम. द में ए ई आई ओ यू, इन पांचों आवाजों में से कोई आवाज आ रही है? जल्दी बताओ, यस या नो. जल्दी, यस या नो. क्विक क्विक. नो. शाबाश. नहीं आ रही है आवाज इन पांचों में से, तो हम लगाएंगे अमंग. लेकिन अगर मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज डैश अस, अस को बोल के देखो, मैंने बोल के देखा, की आवाज आ रही है. क्या यहाँ पे इन पांचों साउंड में से है? अरे हाँ यार है, मुझे दिख गया ये है. अगर है, वोवल साउंड है, तो क्या आएगा? अमंगस्ट. GST. नाउ इज द डिफरेंस क्लियर टू यू ऑल? अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड है जिसमें वोवल साउंड है, उससे पहले अमंग है, तो वो अमंगस्ट होगा. कॉन्सोनेंट साउंड से पहले है, देन दैट विल बी अमंग. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल. राइट? समझ आया? तो अब देखिए बेटा, अब आप मुझे 1 मिनट में बता देंगे इसमें गलती क्या है. मैंने इधर लिख दिया अमंग्स देम. द की आवाज आ रही है, द की आवाज मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है. कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ तो अमंग आता था, मैंने तो यहाँ अमंगस्ट लिख दिया. अब क्या करूं?
ये गलती हो गई, यहाँ क्या आएगा? among. Is the error clear to you now? समझ आया कहाँ गलती है? आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आप फटाफट से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. ऑल राइट. क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू भैया. नेक्स्ट. अब ये 10 years में आया हुआ क्वेश्चन है. नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू 1 minute टू गो थ्रू दिस सेंटेंस एंड टेल मी वेयर कैन यू फाइंड द एरर. और ऐसा भी हो सकता है कोई एरर ना हो, सो you'll have to be very cautious while reading the sentence and do let me know within a minute by replying where can you find the error in this sentence. The sentence is despite of working hard he failed. मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया. Do let me know within a minute. Reply. Oh, very good, very good. Anita Sharma. अनीता शर्मा ने इस बार की रेस जीत ली है. बेटा नेहा आप कहाँ गायब हो गए? हर बार नेहा फर्स्ट आती थी, इस बार अनीता शर्मा हैज गॉट द फर्स्ट रैंक बाय रिप्लाइंग on the very first basis that that Anita Sharma says in spite of and Ganesh says in spite of, Geeta Rani in spite. Very good यार, तुम सब born intelligent हो यार. Very good. हाँ ये तो है, थोड़ा बहुत टीचर का असर तो पड़ता ही है. Jokes apart, just trying to make class a bit interactive. Moving forward, सब बच्चों ने मुझे बिल्कुल appropriate जवाब दिया है. I'm really happy, and that shows that you have seen the videos that I posted on this topic. In the videos, I told you all that in spite and despite, they both have a similar meaning. In Hindi, meaning क्या होता है? के बावजूद. जैसे हम कोई सेंटेंस लेते हैं, पढ़ाई के बावजूद भी मैं फेल हो गई, बहुत एक्सरसाइज करने के बाद भी मैं पतली नहीं हो रही. तो बावजूद के लिए हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? इन स्पाइट एंड डिस्पाइट. लेकिन फर्क क्या था? हमने अपनी वीडियो में पढ़ा था कि डिस्पाइट नेवर टेक्स preposition ऑफ विद इट, whereas in spite always takes preposition off with it. This is the exact difference that we studied in the video together as well. So yes, I'm really very happy. A huge round of applause and a shout out for everybody who replied in spite of. यहाँ पे despite of की जगह in spite of आना चाहिए. Very good. A huge round of applause for everybody. So here instead of despite of, answer क्या आएगा? In spite of. या हम ये भी कह सकते हैं कि मैम इसका ऑफ हटा दो. डिस्पाइट ही लिखने का मन है, किसी का मन है कि भाई मैं क्यों लिखूं इन स्पाइट ऑफ, आई डोंट लाइक दिस वर्ड, देन यू कैन ईदर राइट डिस्पाइट बिकॉज दे बोथ हैव अ सिमिलर मीनिंग. देयर इज ओनली द डिफरेंस ऑफ यूजेज ऑफ preposition in this. With despite we do not use any preposition, rather with in spite we use preposition of. I hope it is clear till now. If you want to note it down in your notebook, then I'm giving you 1 minute for this, and then we'll move forward to the next rule of the day. All right, I'm erasing it now. I'm considering the fact that you're noting down these sentences in your notebook as they are going to be very helpful. कुछ कहीं बुक से, कुछ जो पढ़ाया था उससे, इनफैक्ट कुछ हमने 10 years से लिए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करते जाइए. नेक्स्ट. We thought that the train would be late, but it arrived exactly in time. चलिए, take 1 minute again
and try to use your mind. And do let me know within a minute that where can you find the error in this sentence. It can either be a case that there is no error in this sentence, so you'll have to be very 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 cautious and open minded while reading the sentence. ऐसा भी हो सकता है कोई error ना हो, ऐसा भी हो सकता है कोई हो. Do let me know. Reply fast. अरे इस बार कौन जीता रेस? खेमराज अग्रवाल. Shout out, clapping. Khemraj Agarwal, very good. Ganesh, okay, okay. मैं ये नहीं कह रही आंसर सही है, but at least you have tried. Good. आप रिप्लाई करते जाइए. Let me read the comments. Now, Nihit on time. Very good. Sunil on time. Anita on time. Navyam Tyagi on time. Satyapal on time. Navyam Tyagi on time. All right. Among Mohit Bhardwaj. आप क्या कह रहे हो मोहित? Among it is used. Okay, Mohit. I'll talk to you after class. Don't worry. Lalit on time is correct. Okay. All right, all right. B time is correct. Seema Chaudhary. Okay. बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई किया इन टाइम एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट यू ऑल आर बोर्न इंटेलिजेंट. दैट्स गुड. एंड बट थोड़ा सा जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए देख लेते हैं. जिनको आता है उनके लिए इट्स गोइंग टू बी अ क्विक रिकैप्चुलेशन ऑफ देयर कॉन्सेप्ट्स. सो इट इज गोइंग टू बी एनीवे हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू who are watching this video. Now let's come to the concept that we are going to study through this sentence. See, when we use time का मतलब होता है time सबको पता है समय. बट अगर हम उस समय के साथ इन लगा दें तो मतलब चेंज हो जाता है. ऑन लगा दें तो मतलब चेंज हो जाता है. देखिए क्या होता है. इन टाइम का मतलब होता है समय से, मतलब अभी समय है. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मैंने कहा ट्रेन का टाइम था 5 बजे, बट मैं स्टेशन पे चली गई 4:30. तो हम मैंने क्या कहा, मैं समय से चली गई हूँ, मतलब अभी मेरे पास समय है थोड़ा सा. आई हैव अ बिट ऑफ स्पेयर टाइम विद मी. बट अगर मैं बिल्कुल 5 बजे का टाइम है और 5 बजे पहुंचू एग्जैक्ट उसी समय पर, देन आई यूज दिस preposition ऑन टाइम. सो बिल्कुल समय एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचना. अगर आप बात करो तो आप टाइम के साथ ऑन लगा दोगे, लेकिन अगर आप अभी थोड़ा सा गैप लेके चले हो, अभी अभी आपके पास थोड़ा सा मार्जिन है, सॉरी सॉरी समय में, देन वी यूज इन विद टाइम. देखिए कैसे, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं. कभी हमारे घर में शादी होती है, मैरिज और एनी सोशल गैदरिंग, तो हम अपने घर वालों को कॉल करते हैं या हम फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, तो हम उन्हें ये बोलते हैं कि भाई प्लीज ट्राई टू कम टू आवर प्लेस इन टाइम. हिंदी में हम बोलते हैं समय से आना. इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्राई टू कम टू आवर प्लेस इन टाइम. मतलब थोड़ा 1-2 घंटे पहले आना यार, तैयारी भी तो करानी है तुमको, घर वाले ही तो तैयारी कराएंगे. लेकिन गेस्ट कैसे आते हैं? गेस्ट के लिए हम क्या सोचते हैं? भाई ऑन टाइम आना, पहले मत आ जाना, क्योंकि घर में उस समय बहुत काम होगा. राइट? सो कैन यू सी द डिफरेंस? हम अपने फ्रेंड्स के लिए क्या सोचते हैं? यार प्लीज यू ट्राई टू कम इन टाइम बिकॉज आई नीड योर हेल्प इन प्रिपरेशंस. रादर गेस्ट के लिए क्या कहूंगी? यू प्लीज कम, ट्राई टू कम ऑन टाइम. आप इन टाइम मत आना. राइट? कैन यू सी द डिफरेंस? समय रहते आना, थोड़ा गैप हो, मार्जिन लेके आना, ये बिल्कुल समय पर आना, डॉट उसी टाइम. राइट? तो ट्रेन स्टेशन का एग्जाम्पल ले लिया, फ्रेंड्स का एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल. स्टिल इफ एनीबडी इज इन एनी काइंड ऑफ ट्रबल or if anybody has any question, you can ask by writing in comment box. Now let's come to the sentence. I hope the concept is clear. Now putting this concept in the sentence, let's check it out. We thought that the train would be late, but it arrived exactly in time. Now here, where can you find the error? हमको लगा ट्रेन लेट होगी, लेकिन ट्रेन तो बिल्कुल टाइम पर आ गई. बिल्कुल टाइम पर आई है, टाइम से पहले नहीं आई है. टाइम अभी बहुत मार्जिन लेके नहीं आई है. लेट लग रहा था लेकिन टाइम पे आ गई. बिल्कुल टाइम पे आने के लिए हमने क्या प्रीपोजिशन लर्न किया था? ऑन. लेकिन यहाँ क्या लिख दिया मैंने? इन. कितना इजी है यार, 1 मिनट में हम डिटेक्ट कर सकते हैं.
तो here in is wrong, rather यहाँ क्या आना चाहिए था? On. I hope it is clear to you all now. ठीक है, किसी को कोई doubts? If there is anybody who has any kind of question, they can ask me up by writing in the comment box. If not here, of course मैं बाद में आपका मैसेज आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ on WhatsApp. So don't worry, आप आराम से पूछ सकते हैं. और if you are not comfortable on asking questions here, then all of you, I guess, all of you are having my WhatsApp number, so you can contact me on WhatsApp as well. I'll be always there to help you out. Okay, बच्चों के रिप्लाई आ गए हैं कि कोई एरर नहीं है. Let me give you 1 minute to write down the concept in your notebook. ये इस एग्जाम्पल को लिखने के साथ साथ कॉन्सेप्ट जो समझा रही हूँ वो भी अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए जल्दी. 1 minute for writing it down in your notebook. All right. I suppose आपने लिख लिया है. वीडियो पॉज हो गई है क्या? Am I visible and audible to all of you? Or is there any technical error? Do let me know. बेटा मैसेज में बताओ फटाफट, क्या मैं सबको ऑडिबल और विजिबल हूँ और इज देयर एनी टेक्निकल एरर? Where can you find the error in this sentence? It can either be the case that the sentence is absolutely right. So please try to use your mind.
रिमूव ऑफ, ये किसका आंसर आया है? सीमा चौधरी, एवरी। ओके 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 ओके, हर बच्चे का एक ही रिप्लाई आ रहा है, एवरी आएगा यहाँ पे। अरे तुम एक का रिप्लाई आने के बाद सारे सेम सेम चीटिंग कर लेते हो क्या? अब मैं समझ रही हूँ बेटा, ऐसे ही तुम इतनी देर से मेरी तारीफें लेते जा रहे हो दैट यू आर बोर्न इंटेलिजेंट। आकांक्षा राजपूत इज सेइंग दैट इट्स अ राइट सेंटेंस। ओके भाई, जितने भी बच्चों ने मैम आई वन, सीमा चौधरी, यस यस। हिनाक्षी, यू आर अ बोर्न विनर बेटा, रियली टैलेंटेड गर्ल। ऑल राइट, सो जितने भी बच्चों ने एवरी रिप्लाई दिया गलत है, इसलिए चीटिंग मत करो एक दूसरे की, ट्राई टू यूज योर ओन माइंड। आयुष राज, ओल्ड स्टूडेंट, हेलो आयुष, आई रिमेम्बर यू बेटा, कैसे हो? आई कैन नेवर फॉरगेट योर क्लास, योर क्लास वॉज द बेस्ट क्लास ever. Very good, very good. Good to see you all. How did you get the link, Ayush? Through Himanshi? All right, do message me on WhatsApp. Let me be in contact with every student of your class as well. All right, moving forward. जितने भी बच्चों ने यहाँ every reply दिया, that is wrong. कोई इंटेलिजेंट बच्चा यहाँ बैठा हुआ बताना चाहेगा? कोई और गलती जिसको दिख रही हो इसमें? सोच लीजिए, दिमाग लगा लीजिए। देखिए बेटा, ये जो वर्ड होता है ना कोप, हमेशा अपने साथ preposition with लेता है, एंड कोप with becomes a phrasal verb। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, phrasal verbs हमारे कुछ हिंदी में आई गेस लोकोक्ति हम कहते हैं इन्हें, कुछ थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज को एलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो फ्रेजल कोप के साथ विद लगते ही इट बिकम्स अ फ्रेजल वर्ब, एंड कोप अप मीन्स हैंडल, किसी सिचुएशन को हैंडल करना। हिंदी में हम क्या कहेंगे हैंडल करने को? संभालना, वी कैन से। सो अब यहाँ पर मैंने लिखा शी कैन कोप अप विद। मैंने बहुत बार लोगों को जनरल इंग्लिश में बोलते हुए सुना है, मैंने तभी ये एग्जाम्पल लिया, आई वॉन्ट टू कोप अप विद माई स्टडीज, जो मेरे ट्यूशन नहीं गई मैं 10 दिन से, सो आई वॉन्ट टू कोप अप विद माई पेंडिंग स्टडीज। बहुत बच्चों को मैंने सुना है कि आई वॉन्ट टू कोप अप विद माई इमोशंस, मेरे थोड़े बहुत टाइम से इमोशनली आई एम वीक, सो आई वांट टू कोप अप। मतलब किसी चीज को कवर अप आप करना चाह रहे हो, हैंडल करना चाह रहे हो अपनी लेमन लैंग्वेज में। बहुत लोग, rather I've seen a lot of teachers as well using this slang cope up, but this slang is absolutely incorrect। cope up कुछ होता ही नहीं है। cope अपने साथ हमेशा with लेकर ही एक phrasal verb में आता है। जो phrasal verb की हम बात करते हैं cope up, that is absolutely incorrect because the exact phrasal verb is cope with, right? उसने अपने साथ with preposition लिया, then that phrasal verb came in existence। so cope with means handle। तो यहाँ पे सीधी सी गलती दिखाई दी, कोप अपने साथ कौन सा preposition लेता है? with preposition लेके ये एक phrasal verb बना था। ठीक है, आपको गलती समझ आई? ये बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मैं काफी लोगों को बोलने में और लिखने में देखती हूँ। शुड आई रेज इट? 1 मिनट लगा लो, इफ यू वांट टू राइट द कॉन्सेप्ट कोप अप विद वाला जो मैंने समझाया, अपनी आएगा विद आएगा, वो लिख लीजिए कॉपी में। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर नोटिंग इट डाउन, क्विक। चलिए, this rule we studied together in the last video। जल्दी within a minute reply करिए, बताइए, let me see who is the winner of this sentence game। Hinakshi has replied। Hinakshi is saying on आएगा, okay। Hinakshi, it means you have not seen the videos so far, that is very bad, go and watch the videos, Hinakshi।
रिप्लाई आ गया बच्चों का, आकांक्षा राजपूत, शाबाश, वेरी गुड। सो द विनर ऑफ दिस गेम इज आकांक्षा राजपूत, जिसने फर्स्ट सही जवाब दिया है, बाकी जवाब सही नहीं है। रेस्ट, हिनाक्षी ने सबसे पहले जवाब दिया, but then the answer is not right. You must go and watch the videos. In the last video, we discussed together that if we put something on, किसी चीज के ऊपर कोई चीज आए, so if we get a sentence where in Hindi we are getting the meaning ऊपर, but that particular thing is in contact with something, then we use preposition over. Very good. दो बच्चों का सही जवाब आया। ध्यान से सुनना दोबारा, अगर आप किसी चीज के ऊपर किसी चीज को डाल रहे हो और वो कॉन्टैक्ट में है, देन वी यूज प्रेपोजिशन ओवर। जैसे पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, तो ब्लैंकेट और बेबी कॉन्टैक्ट में होंगे, राइट? in this particular situation where the two things remain in contact with each other, we use preposition over. ज्यादा इसको समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, लास्ट वीडियो में मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया है। जिन्होंने नहीं देखी, गो एंड वॉच इट। नेक्स्ट, इरेज कर दूं? नेक्स्ट, बिसाइड मैथमेटिक्स, लिखते जाइए साथ साथ। आई लाइक इंग्लिश एज वेल। बिसाइड मैथमेटिक्स, आई लाइक इंग्लिश एज वेल। बताइए, सॉरी, इंग्लिश एज वेल। Can you find any error in this sentence, or is it right? Do let me know. Quickly reply. Ayush Raj, you have sent the link. All right, okay, Ayush. नेहा मंगला अगेन, नेहा मंगला, वेरी गुड बेटा, वापस दौड़ में शामिल हो चुकी है नेहा मंगला। कुछ देर से शांत बैठी थी, फिर से ये रेस जीत चुकी हैं। इस सेंटेंस की विनर बन गई हैं नेहा मंगला, जिन्होंने फर्स्ट राइट आंसर दिया है। फिर गणेश शर्मा एंड देन सीमा चौधरी, बिल्कुल सही आंसर, शाबाश। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बिसाइड्स आएगा, और हम सब जिन्होंने जवाब नहीं दिया है उन सब के लिए बता देती हूँ, हमने वीडियो में भी समझाया था, जब हम बिसाइड में एक एस लगा देते हैं तो वो बिसाइड का प्लूरल नहीं बनता। जैसे जनरली क्या होता है, एक चॉकलेट मतलब सिंगुलर, एंड देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन चॉकलेट, देन वी पुट एन एस आफ्टर दैट, चॉकलेट्स। एक है तो चॉकलेट, एक से ज्यादा है तो चॉकलेट्स, ऐसे ही तो करते हैं लोग। मोर देन वन को डिनोट करने के लिए एस लगा देते हैं। दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कॉल्ड सिंगुलर प्लूरल। सो हियर बिसाइड में एस लगते ही, मेरे को कुछ बच्चों ने लास्ट टाइम जवाब दिया था, एस लगते ही मैम इसका मतलब हुआ ये तो प्लूरल हो गया। तो एक बच्चा साइड में बैठा हो तो बिसाइड, ज्यादा बैठे हो तो बिसाइड्स। बट इज इट करेक्ट? नहीं, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। बिसाइड का मतलब क्या था, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, साइड में, कोई चीज साइड में है, कैसे भी लिख लो आप याद करने के लिए। और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू। याद करने के लिए मैंने आपको वीडियो में सिखाया था, इसमें एक एडिशनल अल्फाबेट है ना, एडिशनल अल्फाबेट है, इसका मतलब है इन एडिशन टू, ऐसे हम याद कर लेंगे। मतलब हिंदी में होता है के अलावा, कि किसी चीज के अलावा दूसरी चीज भी मुझे पसंद है। आई होप आपको याद है, मैंने वीडियो में सिखाया था। लेकिन अगर मैं के अलावा का मतलब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा, मैम एक्सेप्ट का मतलब भी तो के अलावा होता है, EXCEPT। तो एक्सेप्ट और बिसाइड्स में क्या फर्क है, आपको याद है मैंने वीडियो में सिखाया था। बिसाइड्स और एक्सेप्ट में ये फर्क है, जब हम किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कि इंग्लिश के अलावा सारे सब्जेक्ट्स मुझे पसंद है, इंग्लिश को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है, तब हमारा क्या आता है, एक्सेप्ट। ध्यान से देखो, इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश को छोड़ दो, इंग्लिश के अलावा बाकी सब सब्जेक्ट्स पसंद है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, इंग्लिश के अलावा प्लस मुझे मैथ भी पसंद है, तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ इंग्लिश प्लस मैथ। जहां हम एडिशन की बात करें, वहां पे बिसाइड्स, बिसाइड्स में एक एक्स्ट्रा एस है, एडिशनल एस है, इसका मतलब इसमें एडिशन की बात होगी। देख लीजिए, बिसाइड्स में एक्स्ट्रा एस, एडिशनल एस, मतलब एडिशन की बात होगी। एक्सेप्ट, जैसे हमको पता चल रहा है, एक्सेप्ट में मतलब आप किसी चीज को एक्सक्लूड करते हो, एक्सेप्ट और एक्सक्लूड बोलने में एक जैसे लग रहे हैं,
एक्सेप्ट, एक्सक्लूड, ऐसे एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड करना, किसी चीज को निकालना। एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना, माइनस करना। ऐसे हम याद कर लेंगे। दोबारा देखो, बिसाइड, बिसाइड में ये वर्ड छुपा हुआ है साइड, मतलब साइड में। राम मेरे साइड में बैठा है, राम सीता के साइड में बैठा है। सिंपल सा एग्जाम्पल। अगर मैंने बिसाइड में एक एक्स्ट्रा एस लगा दिया, एडिशनल एस, मतलब क्या हो जाता है? इन एडिशन टू। हिंदी में क्या हो जाता है? के अलावा। किसी किसी बच्चे के दिमाग में आता है एक्सेप्ट का मतलब भी के अलावा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, एक्सेप्ट का मतलब भी के अलावा है। लेकिन एक्सेप्ट वर्ड और एक्सेप्शन, एक्सेप्ट वर्ड और एक्सक्लूजन एक जैसा लग रहा है। एक्सक्लूड करना मतलब निकाल देना, सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। तो जब कोई ऐसा सेंटेंस होता है जहां हम माइनस करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं किसी चीज को, वहां हम एक्सेप्ट लगाते हैं। जहां हम प्लस करते हैं किसी चीज को, वहां हम बिसाइड्स लगाते हैं। सिंपल बिसाइड का मतलब साइड में। इतना हमें क्लियर हुआ। अब मैंने कहा बिसाइड मैथमेटिक्स आई लाइक इंग्लिश एज वेल, इसकी हिंदी बनाऊं तो क्या बन रही है? मैथ के अलावा मुझे इंग्लिश भी पसंद है। मतलब ये भी और ये भी, प्लस की सेंस आ रही है। प्लस की सेंस में क्या लगता था? बिसाइड्स, एडिशनल एस। यहां मैंने एडिशनल एस लगाया है क्या? नहीं लगाया। तो ये क्या गलती दिख गई हमको कि यहाँ पे बिसाइड नहीं, जबकि क्या आएगा? बिसाइड्स। वेरी गुड। जिन बच्चों ने फर्स्ट नजर में देखते ही राइट आंसर बता दिया था, उनके लिए स्प्लेंडेड वर्क डन। जिन्होंने नहीं बताया था, जिनको नहीं पता था ये कॉन्सेप्ट, कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट। एक्सेप्ट, बिसाइड, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, सबका कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट कर लीजिए विद दिस एग्जाम्पल। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू नोट इट डाउन क्विक। मैम कैन यू, कौशिकी कह रही है 1, आप एक एग्जाम्पल बता दीजिए बिसाइड का। हाँ बिल्कुल बता दूंगी कौशिकी। बिसाइड मतलब साइड में। एग्जाम्पल सुनो, सीता जो है राम के साइड में बैठी है, तो सीता इज सिटिंग बिसाइड राम, साइड में बैठी है। मेरे साइड में बोर्ड है, बोर्ड इज बिसाइड मी, साइड में है। ठीक है। या मैं और क्या कह सकती हूँ? अभी फोन मेरे साइड में है, फोन इज बिसाइड मी। कोई भी चीज साइड में पड़ी हो उसको मैं क्या कहूंगी? बिसाइड। मेरे साथ में कोई खड़ा है तो ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। लेकिन अगर कोई चीज एडिशन की सेंस में आएगी कि मुझे एप्पल के साथ मैंगो भी पसंद है, बिसाइड्स एप्पल, अब मैंने एस लगा दिया, बिसाइड्स एप्पल आई लाइक मैंगो एज वेल, दोनों मुझे पसंद है। मैं कहूं मुझे एप्पल के अलावा सब पसंद है, एक्सेप्ट एप्पल आई लाइक एवरी फ्रूट, आई लाइक ऑल द फ्रूट्स। अब आपको क्लियर हुआ कौशिकी? अभी भी किसी को डाउट है? अगर सबको क्लियर हुआ, वाई फॉर यस एंड फॉर नो, क्विक जल्दी से रिप्लाई करो। वाई फॉर यस एंड फॉर नो, क्विक 1 मिनट लगाओ जल्दी। वाई फॉर यस एंड फॉर नो, वाई फॉर यस एंड फॉर नो, सबके वाई आ रहे हैं, वेरी गुड। आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया है कॉपी में। मूविंग फॉरवर्ड, मुझे लग रहा है कि आप सब अब थक चुके होंगे और मुझे गालियां दे रहे होंगे, कितना पढ़ाएगी, छुट्टियों में भी जीने नहीं दे रही। कोई बात नहीं, बस खत्म होने वाली क्लास। सेकंड लास्ट सेंटेंस है, शी रिलाइज ऑन ही। रिलाइज ऑन मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना, राइट? अब फटाफट बताओ। मुझे पता है 100% आई एम श्योर कि आप मुझे 1 मिनट में बता देने वाले हो इसमें क्या गलती है। टेक अ मिनट एंड डू लेट मी नो क्विक। थैंक यू आमिर सिद्दीकी, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। आमिर सिद्दीकी, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अरे वाह, जवाब आने शुरू हो गए। नेहा मंगला फिर से जीत गई गेम। नेहा क्या चाहती है? गिफ्ट लेके ही मानेगी क्या? Very good, Neha Mangla. Again, she has won the game by giving the first answer. And answer is also absolutely correct. Very good. After that, हमारा second winner of the game है Ganesh. Third winner of the game, निहित। मनीष आए हैं फोर्थ। मनीष शर्मा जी फोर्थ रैंक पे आए हैं। इन्होंने फोर्थ नंबर पे जवाब दिया है कि यहाँ पे हिम आएगा। 4 बच्चों के अलावा आई कैन सी 16-18 पार्टिसिपेंट्स। बाकी सब कहाँ हो? जागो मोहन प्यारे। अभी भी किसी का रिप्लाई नहीं आया। ओके ओके ओके, ऑल राइट। सोचिए सोचिए, अब आपको अपने आप याद आएगा। अभी वी हैव जस्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। याद करो, थोड़ा सा हिंट देती हूँ।
ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगी। कुछ याद आया? अब दिमाग लगाओ, अब बताओ। अब तो रिप्लाई आ जाएंगे। अब मुझे पता है आपको दिमाग की बत्ती जल गई होगी। ऑब्जेक्टिव केस, सोचो। गुड गुड, रिप्लाई करो। यस, हाँ सही, बिल्कुल सही। देखो, मैंने आपको सिखाया था दुनिया का कोई भी प्रेपोजिशन अगर आपको कभी दिख जाए, उसके बाद हमेशा कौन सा केस लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते थे? हिम, हर, मी, ये ऑब्जेक्टिव केस होते थे। नॉमिनेटिव केस क्या होते थे? यहाँ पे दिख रहा होगा। नॉमिनेटिव केस क्या होते थे? ही, शी, आई। याद आया? नॉमिनेटिव केस कभी नहीं लगते, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा लगते हैं। तो यहाँ पे मुझे ही दिख रहा है। विच केस इज दिस ही? I guess it is nominative case, and I've just told you that we can never write a nominative case after any preposition ever on this earth. So it is absolutely incorrect. Here, what should I write? Instead of he, I must write him here. I hope the concept is clear to you all. Let me make it clear once again to all of you. There is a rule for prepositions that after any preposition on this earth, we are supposed to use objective case of preposition, objective case of pronouns. अगर कोई ऐसा sentence बनता है where after preposition we are using a pronoun, then that case in the pronoun should be objective case, not nominative. And objective case कौन से होते हैं? Him, her and me. And nominative case कौन से होते हैं? He, she. So इधर मैंने क्या लिखा हुआ था? He, that is a nominative case जो हमें use नहीं करना है. Rather we are supposed to use objective case. फटाफट लिख लीजिए, then I'm going to erase it. Last example of the day. उसके बाद आप आराम से अपनी चाय कॉफी पी सकते हैं. अब ये तो मुझे आप ही बता देंगे, मैंने अभी डिस्कस किया. मैं लास्ट एग्जाम्पल लिखी सिर्फ कौशिकी के ले रही हूँ, बिकॉज कौशिकी को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसमें. कौशिकी, डू लेट मी नो, फटाफट, क्विक. शाबाश, वेरी गुड. इस गेम के विनर रहे हमारे मनीष शर्मा. नेहा थर्ड, सेकंड आ गई बेटा. गणेश इज थर्ड, आकांक्षा राजपूत फोर्थ, आमिर थमरूल, वेरी गुड. अनीता, वेरी गुड वेरी गुड. नेहित नव्यम त्यागी, वेरी गुड. बिल्कुल, इसका मतलब आपको अभी समझाया हुआ केस क्लियर हो चुका है. कौशिकी का रिप्लाई नहीं आया. कौशिकी जल्दी बताओ. आपको बताना था, ये सेंटेंस था ही आपके लिए डेडिकेटेड. मैंने कहा राम के साथ सीता बैठा है, सीता बैठी है, सॉरी. तो जब किसी के साथ हो कोई, साइड के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते थे? बिसाइड. बिसाइड में ही छुपा हुआ था साइड. एक्स्ट्रा एस, एडिशनल एस आते तो इन एडिशन टू मतलब हो जाता था, याद है? सो हियर वेयर इज the error is here. Instead of besides, we are supposed to use preposition beside. I hope it is clear to you all right. It was really nice teaching you all. It was such an interactive session. Thank you everybody for supporting. Thank you everybody for appreciating, loving and interacting in the session. It was such a nice experience teaching you all. Hoping to see you all again. Hoping to see you all tomorrow. I'll update you with the live sessions timing. Meanwhile, I would like to request you all to go through all the videos that I have posted. 2 or 3 videos are yet to be posted, that probably today or by tomorrow I'm going to post them. उनको भी अच्छे से देखना, and let's promise to meet together again. Meet tomorrow or day after tomorrow. I'll let you know the timings. Thank you